Good morning students, I hope you all are fine. Today I will teach you your third chapter from your first flight book. The name of the chapter is Two Stories About Flying. As we can see in the name of the chapter, there are two stories. First one is his first flight, second one is Black Aeroplane. Today I will teach you first part of this chapter, his first flight, which is written by Liam O'Flaherty. He was a major Irish novelist and short story writer. Before reading the chapter, let me introduce the things you must know. In the title of the first part, here, his refers to seagull, which is a bird. His first flight is an interesting story of a young seagull who was afraid of flying. He didn't have confidence. He thought that his wings would not support him. Despite his younger sibling flying fearlessly with much shorter wings, he could not gather the courage to do the same. He was punished to stay hungry if he didn't try, thus, it was his mother that compelled him to fly by using food as a trap. The lesson reflects how one hesitates to take the first step and that fear is all in the mind. One should trust one's abilities because the fear of suffering is worse than the suffering itself. Let's begin a chapter. His first flight is an interesting story of a young seagull who was afraid of flying. Seagull is a bird. He didn't have confidence. He thought that his wings were not strong enough to support him. All the family members had already left him. They tried to encourage him to fly but failed. He was left alone on the ledge. There was a wide chasm. Chasm means difference between him and his parents. अब ये जो स्टोरी है ये यंग सीगल की है जो कि उड़ना सीख रहा है. उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है. उसको लगता है कि जो उसके विंग्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं जो कि उसको सपोर्ट कर पाएँ. उसके सभी फैमिली मेम्बर्स उसको इनकरेज कर रहे हैं बट वो फिर भी डर रहा है. He tried to reach his parents and took a little run also, but the sight of the widespread green sea frightened him, and he ran back into his nest. His brothers and sisters had already learned the art of flight. अब वो कोशिश कर रहा है अपने पेरेंट्स तक पहुंचने की, बट जब भी वो नीचे की तरफ देखता है उसको समुंदर ही समुंदर नज़र आता है तो फिर वो डर के पीछे भाग जाता है, जबकि उसके जो ब्रदर और सिस्टर्स हैं सब ने उड़ना सीख लिया था. But the young seagull could not muster the courage to take that plunge which appeared to him so difficult. Plunge means a dive. His parents come around calling to him shrilly, upbraiding him. Upbraiding means blaming, threatening to let him stop, but the young seagull did not move. अब ये जो young seagull था वो उड़ नहीं पा रहा था. उसको हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो उड़े. अब उसके पेरेंट्स जो उसको डराते भी हैं, उसको कहते भी हैं कि वो ऐसे अगर नहीं उड़ेगा तो वो भूखा मर जाएगा, बट फिर भी वो यंग सीगल जो है वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा था. He was alone for 24 hours and ate nothing. He was hungry. He wanted to reach his parents who were sitting opposite to him but without flying. There was a wide gap between the two rocks. There was no possibility of reaching there without flying. He saw his brothers and sisters who were flying and catching the fish. They taunted him. He wanted to follow them but the fear stopped him. अब वो 24 hours जो है उसी क्लिफ पर बैठा रहता है. उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता. वो बहुत देर से भूखा होता है. वो अपने पेरेंट्स तक पहुंचना तो चाहता है बट बिना उड़े. पर वो बहुत ही दूरी पर बैठे होते हैं तो इस वजह से उसको उड़ना तो पड़ेगा ही, बट फिर भी जब वो आगे बढ़ता है उड़ने के लिए तो उसको फिर से जब वो नीचे देखता है फिर से घबराहट होने लगती है तो फिर से वापस चला जाता है. वो अपने ब्रदर और सिस्टर्स को देखता है वो कैसे मछली पकड़ रहे हैं. वो भी चाहता है ऐसा करना बट जो उसका डर है उसको रोक देता है. लेट्स सी व्हाट विल हैपन नाउ. ही वाज एक्सट्रीमली हंग्री. अब वो बहुत ही ज़्यादा भूखा है. ही सॉ हिज फैमिली टेकिंग रेस्ट ऑन द रॉक अपोजिट टू हिम. वो देखता है कि उसकी जो फैमिली है वो दूसरी पहाड़ी पर बैठी है. ही ट्राई टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी स्लीपिंग. अब वो प्रिटेंड करता है बेहोश होने का ताकि उनका जो ध्यान है उसकी तरफ हो जाए, बट नोबडी नोटिस्ड हिम. बट कोई भी उसको नोटिस नहीं करता. हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. द यंग सीगल क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अब वो अपनी मदर के आगे भीख मांगता है कि उसको थोड़ा फूड दे दिया जाए, बट शी डिडंट रिस्पॉन्ड. पर वो उसकी कोई हेल्प नहीं करती. After some time, his mother picked up a piece of fish and flew across him. He was excited on seeing his mother picking up a piece of fish and flying across him. He was excited on seeing his mother coming towards him. He uttered a joyful cry. अब थोड़े समय के बाद जब वो देखता है कि उसकी जो मदर है उसके लिए एक फ़िश लेकर आ रही है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet.
But when she was just opposite to him, she halted. Halted means stopped. द यंग सीगल वॉज सरप्राइज्ड. जब उसकी मदर उसके पास आने ही वाली थी वो रुक जाती है. इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड होता है. द साइट ऑफ फिश इन हर बीक मैडन्ड हिम. अब जब वो फिश की तरफ देखता है तो वो भूख से पागल हो जाता है. ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड डाइव्ड एट द फिश. अब वो क्या करता है, झपट मारता है फिश को खाने के लिए. इस वजह से वो जब वो आगे आता है तो वो उड़ने की कोशिश करता है. ही फेल डाउनवर्ड विद अ लाउड स्क्रीम बट हिज विंग्स ओपनड अप ऑटोमेटिकली. पर उसके जो विंग्स हैं वो एकदम से खुल जाते हैं. ही क्राइड एंड टू सेव हिमसेल्फ ही फ्लैप्ड हिज विंग्स. अब वो उड़ने की कोशिश करता है. नाउ ही फेल्ट एज इफ ही वाज सोरिंग इन द स्काई. ही वाज नॉट फॉलिंग नाउ. He flapped his wings once again and soared upwards. He gave a joyous scream now. He was joined by his family in his first flight. अब उसको ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि वो उड़ रहा हो. अब उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था. वो अपने विंग्स को हिलाता है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है खुशी से कि वो उड़ रहा है. अब उसने अपनी फैमिली को भी ज्वाइन कर लिया था. He was near the sea now. He saw a vast green sea beneath him. अब वो जब नीचे की तरफ देखता है बहुत ही बड़ा समुद्र उसको नज़र आता है. His parents and other family members landed on the sea. सभी उस सी पर लैंड करते हैं. They called the young seagull also. और उसको भी कहते हैं लैंड करने के लिए. He dropped his legs to stand on the sea. जब वो अपनी एक लेग को सी के ऊपर रखने की कोशिश करता है, his legs sank into it. अब उसकी जो लेग्स हैं वो सी में ऐसे लगता है कि जैसे वो डूब जाएंगी. He screamed with affright and attempted to rise. अब वो फिर से डर जाता है, वो फिर से ऊपर उठता है. But he was too weak and exhausted to rise. क्योंकि उसने खाना भी नहीं खाया था और उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं थी कि वो और भी ज़्यादा उड़े. So his feet sank into the sea water and then his body touched it. जब वो बार बार ट्राई करता है लैंड करने की तो अचानक से उसकी बॉडी जो है टच कर जाती है. ही सैंक नो फर्दर. अब वो नहीं डूबता. नाउ ही वॉज फ्लोटिंग हैप्पीली. अब वो बहुत ही खुशी से उस पर तैरता है. हिज फैमिली प्रेज्ड हिम फॉर हिज एफर्ट्स. उसकी जो सारी फैमिली है उसकी एफर्ट्स की प्रेज करती है. एंड ऑफर्ड हिम सम स्क्रैप डॉग फिश. अब उसको ऑफ़र भी किया जाता है खाना जो कि डॉग फिश है. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली. अब उसने अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट थी बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट की थी. दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर.